Good afternoon, sir. Good evening, sir. Good evening, sir.
Hello everyone. Hello. Hi. Can you see me? Yes, sir. How are you? No response. थोड़ा response सुनना है. Mic. Mic allow कर देते हैं. चलो. Okay. मैं कर. Fine, sir. Fine, sir. Fine, sir. That's good. Fine, sir. Fine, Good morning, sir. Hello, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good evening, sir. Yes, Sharma. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. How are you, sir? Good afternoon, sir. Good evening, sir. Hello, sir. Good evening, sir. Good morning, sir. Good afternoon, sir. Sir. सर आपका माइक ऑफ. सभी बच्चे अपने कैमरास How are ऑन you, sir? करें. I'm fine. चलो हेलो हो गया है. आपको म्यूट. Okay, so first window, everyone has opened the camera. Second window, yes. Third window, yes. Fourth window, no, not everyone. Fifth window, not a single person. Sixth window, no one. Please open the camera, everyone. Don't sit behind the cameras. Yes. And also correct your name, Galaxy A2 को. By the way, there is one thing which I have to tell you, that if you open your camera, nobody sees, because I can only see few people. Randomly videos will come, and if somebody is seeing on mobile, he or she will not see everyone, because he has to swipe left right. तब तक तो session ही खत्म हो जाएगा, है ना? So don't worry about. And you can blur your background if you are very concerned that my background is not that great. Look, my background, such a poor one. क्या पीछे door है, सब है. You guys have brilliant backgrounds. हैं? मैं नहीं शर्मा रहा हूँ, आप क्यों शर्मा रहे हो? Okay, so मैंने कुछ बोला था आप लोगों को, प्रॉमिस किया था कि हम कुछ एक्टिविटी करेंगे आज. अभी सबने हैंड क्यों उठाया है? क्या क्या पूछना है उनको? हैंड डाउन करो, तभी तो पता चलेगा एक्टिविटी क्या करेंगे. ओके, सो दिस थॉट वाज द थॉट ऑफ द डे, द टीचिंग ऑफ द डे, है ना? और एंड आई होप यू आर राइटिंग दीज टीचिंग्स इन योर बुक. हाँ, मेंटेन द बुक. शांतनु, this screen is visible, right? Yes, sir. Okay, so as I said, we'll start our activity with some fun. So let's have it. तो सब लोग मिस कर रहे थे मिस्टर एंड मिसेस राइट को, तो आई थॉट आज हम फिर से उनकी एक कहानी लेके आएंगे. बट इन दिस वर्जन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस राइट थोड़ा सा ट्विस्ट है. ठीक है, अभी थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है कि आई विल टेल यू समथिंग, you have to follow it. I have got one paper with me. It's a color paper, but you don't need to use a color one. In fact, अगर आपके पास कोई used paper है या newspaper है, just get one. Okay, get one newspaper or any rough paper, whatever you have. No necessary that you need to bring a blank one. Simple paper ले आओ कोई भी. Used paper. Yes, newspaper will also do. डायरी से मत पढ़ो. न्यूज़पेपर ले आओ. Go and get used one. हाँ, newspaper. If you have newspaper, then fine. Yes, you have got newspaper. You are hiding the newspaper. Why? तुम्हारा उसमें फोटो तो नहीं आया मोस्ट वांटेड? कहीं किसी को पता चल गया तो पुलिस में बता देगा, तो मैं न्यूज़पेपर छुपा देता हूँ. ठीक है, वेरी गुड. आप न्यूज़पेपर ले लो. मैं तो बस सैंपल के लिए दिखा रहा हूँ आपको, मैं इसको यूज नहीं करने वाला हूँ. बट आप न्यूज़पेपर ले लो, ठीक है, वो अच्छा रहेगा. या आप कोई रफ पेपर ले लो जिसमें आपने लिखा हुआ है.
या आपका ओप्पो A30 पिछले साल का ले लो। ओप्पो A31 प्लीज अपना नाम करेक्ट नेम डालिए वहाँ। नेम करेक्ट करो, नेम करेक्ट करो। गैलेक्सी, ओप्पो, अल्ट्रा, चलो फायरबोल सब चेंज कर दीजिए प्लीज। तुमको नेम चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये इसी नाम का सर्टिफिकेट मिलेगा तुम्हें। ओप्पो A31। Oppo A31 has participated in Vivekashala camp and did not listen to instructions at all. ऐसा लिख देंगे हम उस पर, ठीक है? ठीक है, okay. So you have got the paper ना? Just a second. Okay. Are you done with the paper? आ गया सबके पास? ठीक है. Make 15 pieces of this paper. जो भी पेपर आपके पास है, जो भी पेपर है, प्रेफरेबली डोंट यूज द ब्लैंक वन, इसीलिए मैंने बोला था उसको फाड़ना है हमने, तो न्यूज़पेपर ले लो या कोई रफ पेपर ले लो। हमको 15 पीस करने हैं ऐसे करके, छोटे छोटे। कैसे? आई टेल यू। जैसे ये किया ना, ये किया 1 पीस, इसको मैंने ऐसे बनाया बॉल। क्या बना दिया? छोटा सा एक बॉल बना दिया, लाइक दिस, यू कैन सी इन द कैमरा। ओके, ऐसे करके छोटे छोटे 15 गोली बनानी है, आटे की गोलियां जैसे होती हैं। चलो बनाओ, न्यूज़पेपर का बना लो, ब्लैंक पेज का मत करना, वो वेस्ट हो जाएगा। ऐसा बना लो, ठीक है? 15। बहुत आसान इंस्ट्रक्शंस हैं। आई डोंट थिंक किसी के पास क्वेरी होनी चाहिए, फिर भी किसी के पास क्वेरी है तो फिजिकल हैंड रेस करेगा वो। किसी के पास नहीं है? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी 15। मिसेस राइट इज वेटिंग फॉर यू, डू इट फास्ट। गोली, स्मॉल बॉल। अच्छा, फेयर पेपर का नहीं करना है, नहीं तो बोलेंगे क्या सर पेज पेज फड़वा दिया बोलेंगे सबने। मामा बोलेंगे देखो गंदगी कर दी घर पे, कौन सर है ये? इससे अच्छा तो जो खराब पेपर है ना उसका करो। मामा कहेंगे वाह वेरी गुड, रिसाइकल कर दिया पेपर, हाँ, बेस्ट यूज किया पेपर का। आर यू डन? नो? ओहो, 15 मैंने ज्यादा बोल दिया लगता है, कोई बात नहीं, करना तो है ही। छोटे छोटे बना सकते हो, ऐसे पीस भी बना सकते हो, मतलब जैसे मनी होता है ना, कॉइन टाइप का भी बना सकते हो साइज, जैसे नोट होता है उतना भी बना सकते हो। इट्स लाइक मनी, जैसे मनी है ना, तो 15 रुपीज का वो बनाओ, ठीक है? अपना पैसा मनी मनी, सब अपने इससे फिर शॉपिंग करने जाएंगे। रेडी? 6। ओके, सिंपल भी बना सकते हो, जरूरी नहीं ऐसा बनाना। ये मैंने इसलिए बोला सो दैट यू कैन होल्ड इट प्रॉपरली। आप छोटे छोटे नोट टाइप के होते हैं ना, जैसे करेंसी छोटी, ऐसे भी बना सकते हो। फ्लैट भी एक सिंगल भी रख सकते हो, उसको ऐसा करने का जरूरत नहीं है, बट ये हैंड पे आप होल्ड कर पाओगे, इसीलिए मैंने आपको बोला ऐसा करने को। और जब एक्टिविटी खत्म हो जाएगा फिर अपने भाई को, अपने सिस्टर को करोगे, मत करना ऐसा। आई एम नॉट गिविंग यू एनी आइडिया, ठीक है? वरना क्रेडिट जाएगा कि सर ने ऐसी बात सिखा दी और सब बच्चे शैतानी करने में उतर आए। हो गया फास्ट? नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होगा और इंटेंस एक्टिविटी भी होगा, और इससे यह पता चलेगा कि आप अपने माइंड का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कितनी चीजें आपको याद रहती हैं, कितना डिटेल में आपको याद रहता है कोई चीज, ठीक है? मैंने पहले आपको हिंट दे दिया। हम जो भी एक्टिविटी करेंगे, यू नीड टू बी वेरी वेरी अटेंटिव, वेरी माइंडफुल, ठीक है? ध्यान से सुनना है, एक्टिविटी करते समय भी ध्यान देना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, सर क्या बोल रहे हैं, ठीक है? अच्छे से सुनना है, और जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे करते रहना।
और इसका नेक्स्ट लेवल भी है अभी, वो हम लोग नेक्स्ट उसमें सीखेंगे, धीरे 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 हम लेवल बढ़ाएंगे। आर यू डन? जिसका 15 हो चुका है वो हैंड रेस का बटन क्लिक करो जल्दी। साइज डज नॉट मैटर, केवल जितना आप अपने हाथ में पकड़ सकते हो उतना बनाओ, ठीक है। आप ऐसा भी बना सकते हो, आप सिंपल एक छोटा सा टुकड़ा, एक चिट भी बना सकते हो। मैंने चीटी बोल देना चाहिए था, वरना आप लोग टाइम ज्यादा ले रहे हो। ये तो मैंने इसलिए बोला सो दैट आप इसको अच्छे से होल्ड कर पाओ, ठीक है। चलो अभी हैंड डाउन कर दो सभी, अभी हम एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं। सबका हो गया? हो चुका है? डन, वेरी गुड वेरी गुड। 15 करना है बेटा, कितना टाइम लगेगा, फटाफट कर लो। I can see few people are not doing it, just sitting in front of camera. Why? Just don't be passive observer. Camp is about participation. If you do not participate, how will you learn? And a lot of people are sitting behind the camera. This is not done. देखो मैं सबके नाम लूंगा अब, जो जो कैमरा बंद करके बैठे हैं, सबके नाम लेने पड़ेंगे मुझे। चलो चलो कैमरा खोलो जल्दी। हाँ चलो फटाक से कैमरा खोलो। मुझे पता कैसे चलेगा आप लोग में रेडी हुए नहीं हुए हो? कैमरे के पीछे बैठे हो। अच्छा चलो, तो नाउ यू हैव गॉट 15 दीज, आई विल कॉल देम कॉइन्स, ठीक है। 15 कॉइन्स यू हैव मेड फॉर योरसेल्फ। सो मिस्टर राइट एंड मिसेस राइट, you remember Mr. and Mrs. Right, husband wife, from the first session. So Mr. and Mrs. Right are going to a vacation, okay? छुट्टी है उनकी, वो कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, और वो घूमने के लिए जा रहे हैं और उनके साथ उनके बच्चे भी हैं और उनके फैमिली के और मेंबर्स भी हैं। तो उनकी जो गाड़ी है वो बहुत बड़ी नहीं है, छोटी गाड़ी है, तो उसमें बहुत सारे लोग नहीं आ सकते, तो कुछ लोगों को वो छोड़ देते हैं, ठीक है। तो जब कुछ लोगों को छोड़ते हैं तो क्या होता है वो मैं रिसाइट करूंगा। सो नाउ यू हैव गॉट दीज 15 कॉइन्स विद यू, फाइन। अब करना क्या है कि सारे के सारे 15 कॉइन्स को अपने हाथ में रखना है, ओके, और अपने लेफ्ट हैंड में रखना है और अपनी लेफ्ट साइड में रखना है, ठीक है। टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड, इधर यू पुट इट ऑन योर लेफ्ट साइड ऑन द डेस्क वेयर यू आर सिटिंग, और इफ यू आर होल्डिंग लाइक दिस, जैसे मैंने ये पकड़ा हुआ है, इफ यू कैन सी, तो ऐसे करके अपने हाथ में रख लेने हैं 15, ठीक है। नाउ द कैच इज, अगेन आई विल रिसाइट द स्टोरी, यू हैव टू एक्ट। अभी इसमें हमने लेफ्ट राइट जंप नहीं करना है, अभी हमें कॉइन्स को पास करना है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो क्या करना है कि जैसे जैसे मैं स्टोरी बोलूंगा वैसे वैसे आपको कॉइन यहां से वहां से वहां पास करना होगा। जब आपको मैं बोलूं just a second. ओके, जैसे मैं बोलूं राइट, जैसे आप राइट सुनोगे ना, राइट वर्ड, तो आपको लेफ्ट से एक उठा के राइट पे रख देना, ठीक है। लेफ्ट से, आपके लेफ्ट में है ना 15, तो जैसे आपने राइट सुना तो राइट में एक रख दिया कॉइन, जैसे आपने लेफ्ट सुना लेफ्ट में रख दिया कॉइन, जैसे राइट सुना राइट में रख दिया कॉइन, लाइक दिस, ठीक है। इजी है ना, बहुत इजी है, ध्यान से सुनना है जो जो बोलूंगा, है ना। इजी है क्या? थम्स अप करो, इजी है। कोई थम्स अप आ नहीं रहा है मुझे, कैसे पता चलेगा इजी है? हाँ समझ गए ना सभी लोग? सारा कुछ लेफ्ट पे रखना है। सो एज सुन एज राइट, तो एक उठा के राइट पे रख देना है बस, तो यहाँ 14 बच जाएंगे। फिर वेट करना है, सुनना है ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे लेफ्ट आया तो ये जो 1 यहां था ये वापस यहां आ गया, ठीक है। फिर से राइट आया, जैसे एक राइट आया इधर रख देना है, अगला राइट आया फिर से इधर ले जाना है। अगर लेफ्ट आया तो एक उठा के यहां रख देना है, यहां एक बच जाएगा। तो इस हिसाब से यहां से वहां जंपिंग चलेगी, ठीक है। अगर आपसे ऐसे नहीं हो पा रहा है तो आप टेबल पे कर लो, ठीक है, टेबल पे करो। लेफ्ट साइड रखना है, लेकिन पहला बैच आपको लेफ्ट साइड ही रखना है। 15 पीसेस विल बी ऑन योर लेफ्ट हैंड और टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड। क्लियर? आगे बढ़े, बोलो थम्स अप। ओके, नाउ द कैच इज,
द गेम इज नॉट दैट इजी. जब आप ये सब करोगे ना, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, पूरी स्टोरी ध्यान से सुननी है, जो मैं बोल रहा हूं वो भी सुनना है. सो एट द एंड ऑफ द एक्टिविटी आपको बताना है कि स्टोरी में क्या हुआ. समझे? लेफ्ट राइट करना है और स्टोरी भी सुननी है कि स्टोरी में हो क्या रहा है आखिर, और फिर ब्रीफ बताना है. जो डिटेल में सबसे अच्छे से बताएगा वो इस गेम का विनर कहलाएगा. समझ गए? तो अब आपको अपनी लिसनिंग स्किल्स भी यूज करनी है, माइंड को भी एकदम कॉन्सेंट्रेट करना है, यहां से वहां भी करते रहना है, और स्टोरी में क्या चल रहा है उसको भी समझना है. ठीक है? चैलेंजिंग. बोलो यस, थम्स अप. लेट्स स्टार्ट. आई कैन नॉट सी यू बिकॉज मेरे को स्टोरी डिसाइड करना है, तो शांतनु सर देख रहे हैं आप लोगों को. और आप अपने लेफ्ट में 15 रखेंगे. जैसे ही मैं जो बोलूंगा, एक वर्ड आएगा तो एक इधर कर देना है, जैसे ही लेफ्ट आएगा तो इधर कर देना. ठीक है? राइट आएगा तो लेफ्ट से राइट, और लेफ्ट आएगा तो राइट से लेफ्ट. चलो स्टार्ट करते हैं. वन डे द राइट फैमिली डिसाइडेड टू टेक अ वेकेशन. The first thing they had to decide was who would be left at home, since there was not enough room in the Wright family car for all of them. Mr. Wright decided that Aunt Linda Wright would be one left at home. Of course, this made Aunt Linda Wright so mad that she left the house immediately, yelling, "It will be a right cold day before I return." The Wright family now bundled up the children, Tommy Wright, Suzanne Wright, Timmy Wright, and Shelley Wright, and got in the car and left. Unfortunately, as they turned out of the driveway, someone had left a trash can in the street, so they had to turn right around and stop the car. They told Tommy Wright to get out of the car and move the trash can so they could get going. Tommy took so long that they almost left him in the street. Once the Wright family got on the road, Mother Wright wondered if she had left the stove on. Father Wright told her not to worry. He had checked the stove and she had not left it on. As they turned right at the corner, everyone started to think about other things that they might have left undone. No need to worry now. They were off on a right fine vacation. When they arrived at the gas station, Father Wright put gas in the car and then discovered that he had left his wallet at home. So Timmy Wright ran home to get the money that was left behind. After Timmy had left, Suzanne Wright started to feel sick. She left the car saying that she had to throw up. This, of course, got Mother Wright's attention and she left the car in a hurry. Shelley Wright wanted to watch Susan get sick, so she left the car too. Father Wright was left with Tommy Wright, who was playing a game in the back seat. With all of this going on, Father Wright decided that this was not the right time to take a vacation. So he gathered up all of the family and left the gas station as quickly as he could. When he arrived home, he turned left into the driveway and said, "I wish the Wright family had never left the house." Right? Question mark. Game is up. तो बताओ लेफ्ट हैंड में कितने कॉइन्स हैं आपके? How many coins are there in your left hand? लेफ्ट हैंड कितने हैं? ऐसे करके 3 4 ऐसे दिखाओ मुझे. How many? How many? How many? कितने? Okay. अगर if you are left with 4 coins in your left hand, then you listen to this game carefully and you followed all the instruction. How many of you have got 4 coins in your left hand? कौन कौन है? Raise your hand. 4 coins वाले कितने लोग हैं? I only see few. सब गड़बड़ कर दिया बाकियों ने. लिसनिंग स्किल्स और एक्टिंग एंड लिसनिंग नहीं हो पाया साथ में. हाँ, I have seen many people. Yes, there are many. Very good.
Very good. 4 is the final number. Okay, you are left with 4 coins in your left hand. है ना? जिसने follow किया है 4. Okay, great. Good. Very good. Okay, hands down. Can anyone tell me what was the whole story about? किसी को याद है क्या हुआ इस स्टोरी में? कुछ डिटेल में कौन बताएगा कि मैंने जितना बताया डिटेलिंग में कौन बताएगा? चलो आराध्या से पूछते हैं. Yes, sir. Sir, one day the Wright family decided to go to a vacation, but while they were driving to the vacation, they all were remembering that they have missing something. As they reached to the gas station, there was a sick ride, so they all decided to leave the car and go to their home. Okay. Any other detailing which is missing here? Riddhi. Yes, Riddhi Rena. You need to unmute yourself. Yes. Sir, so Wright family were thinking about a trip. So the aunt, she was left home and she was really very sad. Yes. This was missing in that story. Yes. What else? Yes. Continue. So they went to the trip. So in the trip, they were facing very much consequences. Like there was a dustbin in the road, which was a barrier between their way. So he told his son to get down out of the car and bring that, just move that trash side, and after that they were moving. So Mother Wright thought that she has turned the gas flame on, and but Father Wright said that no, I just checked and it was all closed. Then all children started thinking that have they missed anything at their houses. So when they went to the gas station, they all had many problems, like someone wanted to vomit, and the boy, the son, he was seeing the video game at the back with his father. Very nice. Great presentation. 99% exact the story. Very good. One thing was missing actually. एक चीज missing है. कोई बताएगा इसमें क्या missing था? One thing was missing. It was very nice attempt, huh, Riddhi? Very good. लीजिए टीना से पूछते हैं. Tina, you tell. What do you think? What was missing here? One thing. Which one to add? Audible? Yes, you are audible. Sir, am I audible? Yes. Sir, the one thing that was missing was that Timmy Wright went to the house to get his father's wallet. Yes. Exactly. Very nice. Clap for yourself, everyone. मजा आया स्टोरी में. ताली बजाओ भाई. ऐसे नहीं बैठना है स्क्रीन के आगे. मेरा इंटरनेट वीक है क्या? यस सर, आपका वॉइस बीच में वॉइस चला जा रहा है. I don't know because you guys are getting frozen. Is it okay now? Is this okay? No sir. No. Freeze हो रहे हैं. Freeze हो रहे हैं. Freeze हो रहे हैं. Freeze क्यों हो रहे हैं? Is this okay? कैमरा ऑफ. हाँ अभी ठीक है. No. यस सर ठीक है. Is it fine now? यस सर. Can you see the screen? Hello. Yes. Yes sir.
स्क्रीन दिख रहा है बट क्लियर नहीं है. Okay. Now it's clear. Okay. So some internet issues. Anyways, we'll try. कैसे सही होगा? तो oh my god, what is happening? Hello, can you hear me? Yes sir. Okay. So I hope you guys have enjoyed this activity. Nice one. So in this, your mind was involved in passing these coins from one hand to another, but at the same time you had to listen to that story carefully, and very good. And I think you enjoyed this activity. So in this such activities, we do multiple tasks together. So it's like, it is just like keeping your both side of brain active, your left side of brain and right side of brain, and you all are aware that your left part of your brain takes care of your right side of movement, right part of brain takes care of left side of movement. Your right side of brain is very creative, very very creative plus artistic mind, and then left side one is very logical and analytical, numbers. So it was a combination of both left and right. Now let's move forward. कल हमने क्या देखा था? Seeing is believing देखा था, right? हमने देखा था कि am I audible? Yes sir. Okay. So कल हमने देखा था, ये सब देखा था हमने, देखो. The final conclusion of our activity was, we started with this, that all power is within you. You can do anything and everything. And then we said, if the powers are there, then what stops us from bringing those powers in our day-to-day life? And how we can achieve that Olympian state of mind. This is what we learned yesterday. And Olympic state of mind is nothing but a state where your mind functions in a peak level. Every time, whatever you do, हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमारा जो माइंड है, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? हाँ सर, बीच में थोड़ा सा. ओके. अभी तो आ रही है, आपकी क्लियर है. Okay, so this is what we learned, that how can we make our mind sharp, focused, concentrated every time, just like those Olympians, है ना? तो फिर हमने देखा कि the only problem is why we are not able to get the hold of those powers, because we do not believe that powers are there, because we haven't experienced them yet, we haven't seen it. So this was the question, why can't I believe? Because we haven't seen it. Okay, because this is true for everyone, that whatever we see, we start believing it. Okay, unless we haven't seen it, we will not believe. So seeing is believing. Then we said, if I don't see anything, does that mean that that particular thing does not exist? This was the question. Then we said, I don't think, because there are so many things which we don't see, but that does not mean that they are not there. For example, in air or in water, there are molecules, there are microorganisms which we don't see using our these senses, normal senses. But if we can have some instruments, if we can go beyond those sensory perception, then we can see these things. We can see this microorganism and all. Fine. So the okay. So seeing is believing is true in sensory level. Okay. है ना? Seeing is believing is always true in sensory level. You agree? Because if I see sun outside, I can say that sun is there. If there is no sun, okay, if I cannot see anything, then I'll say no, sun is not here. But maybe sun is there because of some cloud or something, I can't see it.
But in sensory level, what happens if I see this glass in front of me, I say yes, it is here. But if somebody put something like this and say it is glass, I won't believe it because it is not there. ठीक है? तो जो मैं देख सकता हूँ, जो मैं छू सकता हूँ, जो मैं टच कर सकता हूँ, मैं उसी पे बिलीव करूंगा. जो मैं नहीं देख सकता हूँ, उसमें मैं क्यों बिलीव करूंगा? Okay. So now yes. So when we take help from some devices, or we can bring certain instrument which can help us to go beyond our sensory perception, then we can hack our sense. कैसे? अगर हमको कोई चीज देखना है, वाटर में हमें कुछ देखना है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स देखने हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने हैं, तो हम क्या करेंगे? एक छोटा सा स्लाइड में छोटा सा ड्रॉप लेंगे, उसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे और उसके बाद देखेंगे तो हमें दिख जाएगा. बट नेकेड आई से देखेंगे तो नहीं दिखेगा. ठीक है? सो व्हेन वी आर एबल टू हैक आवर सेंस, हैक का मतलब कंप्यूटर हैक नहीं, बट when we take some aid from any device, you take help from any instrument, okay, then it is known as going beyond your sensory level. So we can see things, but उसके लिए वो sense develop करना पड़ेगा. जैसे for example, there are certain voices we can't hear, okay, but animals, they can hear, okay, and there are certain voices ants make, but we can't hear those voices. So in Discovery there is this video where ants are moving and making some noise, and very high efficient recording device is recording those voices. And when you hear those voices, these are so funny. आपको चींटी की आवाज भी सुनाई दे सकती है. All you need to have a device which can record that sound. ठीक है? तो इसी को बोल रहे हैं कि when you go beyond your sensory level, you can do so many things. ठीक है? अब मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूं. आई होप, वेट, ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, दिस वीडियो इज अबाउट सीइंग all those things which we don't see in our normal days. We see all these things in a very different what do you say, in a very different manner, but all these things are there, or all these things are there in our human body, but we can't see them through normal eyes. But for that we need a different kind of eye. Okay, so in this video you will see that different things which are there in your body which you normally see. I can see my skin currently, but I cannot go deep into it, and I cannot identify that okay, my skin actually looks like this. When I see it in electronic microscope or electron microscope, then it looks totally different. ठीक है? अभी देखेंगे कि हमारे शरीर में क्या कैसी चीजें हैं जो हमें नॉर्मल में ऐसी दिखती हैं, बट अगर हम उसे एक्चुअल में माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो वो कैसा दिखता है. जस्ट सी.
तो देखा आप लोगों ने, your human body looks so different when you see through a different vision, through a different eye, है ना? माइक्रोस्कोप से देखा आपने आपकी टंग कैसी दिखती है, एकदम स्पाइक्स की जैसी, हेयर कैसे दिखते हैं, आपके नेल्स कैसे दिखते हैं, बट इन रियलिटी व्हेन यू ट्राई टू सी यू वोंट गेट दैट डिटेल, ठीक है? तो देखो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं, एक वर्ड लिखा है सटल, एक लिखा है फाइन, एक लिखा है ग्रॉस, फिर लिखा है कोर्स, ठीक है? तो हिंदी में भी लिखा है, किसी को समझ में आता है इसका मतलब क्या है? फिजिकल हैंड रेस करना, शांतनु विल अलाउ. What do you mean by subtle and gross? Or Prachi Bella. Prachi Bella. Prachi, open your mic. Yes. Yes, sir. I only know about gross. In French, it means fat. French. Oh, Yes, sir. that's a new word I have learned in French. Thank you. Gross. Thank you, sir. Okay. Anyone else? Difference between subtle and Lavishka. gross? Yes, sir. Gross. I have heard that gross means somewhat bad, and gross means like gross margin, जो कि business के लिए use करा जाता है. Okay. And what about subtle? Subtle means light, sheer. I think so. What? Sheer. Something sheer. Sheer. I didn't get it. Sheer. I'm saying sheer. Okay. Sheer or sheer? Sheer. S-H-E-E-R. Okay, S-H-E-E-R. Okay. Yeah. Okay. Anyone else? Parth Kaushik. Sir, subtle means very small, like microorganisms, and gross means the thing which is, sir, like not movable. Okay. Good. Anyone else? Shashwat. Sanidhya. Sir, I think that subtle means soft. Okay. Sanskriti. संस्कृति आपका वॉइस नहीं आ रहा है. Varenya. Yes, sir. So subtle means light. Gross means like still in one place, and cross means like not a plain surface. Okay. And and the next is and fin one I don't know, sir. Okay. ठीक है. चलो ठीक है. Let's move forward. All of you, your answers are right in certain extent. तो इनको आसान भाषा में कैसे समझेंगे? सटल के नीचे सूक्ष्म लिखा हुआ है. सूक्ष्म का मतलब होता है एकदम माइक्रो, ठीक है? फाइन मतलब एकदम महीन, ग्रॉस मतलब एकदम स्थूल, स्थूल मतलब समथिंग दैट इज फिजिकल, समथिंग दैट इज मटेरियल, विच कैन बी टच्ड, विच कैन बी सीन. ओके, योर बॉडी, आउटर बॉडी है ना हमारा, ये जो बॉडी है, वी कैन टच आवर बॉडी, वी कैन टच आवर हेयर, वी कैन टच आवर लेग्स, ऑल आर द ग्रॉस. ओके, तो सटल एंड ग्रॉस, फाइन एंड कोर्स. तो सटल को आप फाइन भी सोच सकते हो, समझने के लिए लिखा हुआ है वो, और ग्रॉस को आप कोर्स समझ सकते हो, खुरदुरा हमने देखा अभी वीडियो में, ठीक है? घना भी बोल सकते हैं उसको. समथिंग दैट यू कैन फील, टच, समथिंग दैट हैज सम फिजिकल appearance. Okay, and
subtle is invisible, subtle you cannot see. ठीक है? And subtle is something which is beyond your this normal sensory perception. जैसे हमने अभी देखा था ना, एयर और वाटर में हमने बोला कि हम लोग देख नहीं सकते हैं कुछ, तो उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए, माइक्रोस्कोप से हमने देखा तो हमें दिख गया, तो उस तरह का. ठीक है? तो अभी हम फिलहाल ये समझते हैं, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. Now see the picture. You see this picture, this person standing in the middle. It's he's a bodybuilder, right? Bodybuilder hai, with muscular body and everything. And this gross and subtle which we have learned right now can be applied and we can make a meaning out of it. Okay? How will we find the meaning? See, when we started this exercise, we were trying to see where are the powers of our mind. Okay? The powers which are there, the potential which is there, where is that? So the journey started. We saw the pictures of various sports people, Olympic state of mind we came to know. Then we said that something which we can't see, that does not mean that it is not there. So in case of a bodybuilder, what we see and what represents the benchmark of strength is his body. Whenever we see a bodybuilder with his muscular body, we think that इसकी मसल्स में तो बहुत पावर होगी, है ना? हम यही तो सोचेंगे जब हम किसी बॉडी बिल्डर को देखेंगे और उसकी बॉडी देखेंगे, तो हमको यही तो लगेगा कि भैया इसकी तो मसल्स में बहुत पावर है. तो जो हम देख रहे हैं वो क्या है? वो ग्रॉस है, जो दिखाई दे रहा है, उसकी मसल्स हमें दिखाई दे रही. But there is something very unique about those muscles, because these muscles cannot operate if there is no strength, if there is no current in those different veins. So veins जो muscles में जा रही हैं, लेफ्ट साइड देखो veins बनी हुई हैं बहुत सारी, वो muscles में जा रही हैं और वो current flow कर रही हैं, वो अपने साथ blood लेके जा रही हैं. Okay, so they are carrying that energy. But if you cut off those veins, there will be no energy in the muscles. Muscles will have no use. It will be like a dead body. अगर ये veins cut off हो जाएंगे, अगर हम इसको हटा दें connection, तो ये जो बॉडी बिल्डर इतनी बॉडी दिखा रहा है यहाँ पे, ऐसे स्ट्रेंथ को दिखा रहा है एकदम, जो हमें दिख रहा है कि इसकी मसल्स में स्ट्रेंथ है, लेकिन एक्चुअल में तो स्ट्रेंथ कहीं और से आ रहा है. एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स, है ना? तो ठीक वैसे ही something which we can't see, in case of this bodybuilder, we can only see the gross body, and we think that this is the strength which he is showing is the outcome of his gross body. No, it is not that. The strength which is there is coming through these different these various or very micro veins which are spread in the entire body, और सारी मसल्स को स्ट्रेंथ वहीं से मिल रही. सो दैट मीन्स बॉडी ज्यादा पावरफुल है या वेन्स में जो एनर्जी आ रही है वो ज्यादा पावरफुल है. अगर वो नहीं आएगी तो बॉडी मूव नहीं करेगी. ठीक है? तो ये इससे हम लोग ये समझे कि जो हमें दिख रहा है, जिसमें हमें स्ट्रेंथ दिख रही है, स्ट्रेंथ उससे नहीं आ रही है, स्ट्रेंथ कहीं और से आ रही है. तो अभी हम लोग ने जब ओलंपियन स्टेट ऑफ माइंड बोला और बोला कि हमारे अंदर स्ट्रेंथ है, दैट मीन्स वी नीड टू गो टू दैट स्टेज, दैट लेवल जहां पे वो स्ट्रेंथ का स्टोर हाउस है. ठीक है? अब हम आगे बढ़ेंगे. सो द क्वेश्चन, नाउ द कंक्लूजन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर photo or this particular case is that the power is in the fine, power is in the subtle. जो फाइन है, जो दिख नहीं रहा है, जो छुपा हुआ है, पावर एक्चुअल में वहां है. जो दिख रहा है, जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है पावर का, वो एक्चुअल सोर्स नहीं है. अगर वहां से हम कट ऑफ कर देंगे तो मसल्स किसी काम की नहीं होंगी. तो ग्रॉस इज द एक्सप्रेशन ऑफ दैट पावर विच इज कमिंग फ्रॉम द सटल. ग्रॉस बॉडी जो दिख रही है वो केवल एक्सप्रेशन है.
लेकिन उसका सोर्स तो अंदर से ही आ रहा है. वो सोर्स अगर कट कर देंगे तो ग्रॉस भी काम नहीं करेगा. Do you see this bullet train? कितना fast चलता है नहीं? So in this bullet train, we can see that there are different compartments, and when we board these kind of trains, we don't see the engine of those trains. We don't know where is the engine, right? So हम तो engine देखते नहीं है, but what we see is the whole train. हम पूरी train देख रहे हैं, engine हमें दिख नहीं रहा. But that engine is responsible for producing that energy. Okay, and the energy is the cause of movement of this bullet train. Same goes with any vehicle which you see outside. If you see any bus, school bus, so you see that school bus carrying all the students and everyone. So when we see that bus, we see the physical outer of that bus, and we say, it's so powerful bus. But what is that power? That power, that horsepower of that engine is hidden. We can't see that. We can't even see the power actually. Okay, we can just feel when we accelerate the pedal, then we can see that power is coming. Okay, but actual power is in the subtle only, because the fuel is getting burned or such energy bun rahi hai. We can't see that. But actual source is that fine material. So always we have to go from coarse to find the powers. So in our case, the body is the gross body. Okay, so we need to find anything that is fine then, or anything that is finer than this gross body. So slowly the journey starts. If there are powers, so those powers are not in the body. So we need to go beyond body, because we know that muscles तो काम नहीं करेंगे जब तक हमारे veins पे energy नहीं होगी. तो एक बार veins से signal cut हो गया तो muscles भी काम नहीं करेंगे. So then we will narrow down our approach and we will try to reach out to the power. And it is always difficult to see the fine, because you can't see the fine. You can't see the engine, you can't see the petrol getting burned, you can't see that energy which is responsible for running our body. So fine को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है. Okay? Now see this. What is this? It's a hummingbird. दोबारा देखना है? अभी देखो आपकी स्क्रीन पे आएगी. देखो कैसे आई, बिना किसी इंटीमेशन के आ गई. अभी डिफिकल्ट टू सी द फाइन. तो अभी देखो हमिंगबर्ड के जो फेदर है ना, वो कितने फाइन मूव कर रहे हैं. और जो क्वेश्चन है वो भी आपको आंसर देना है. रुको. द क्वेश्चन इज, हाउ फास्ट डज अ हमिंगबर्ड्स विंग्स बीट? कैन एनीबडी टेल मी विदाउट गूगलिंग इट? किसी को पता है हमिंगबर्ड के जो फेदर हैं वो कितना जल्दी काम करते हैं? हैंड रेज हुआ है तो शांतनु पूछो एक बार. देखो फिर से आ गई. दीपशिका. Sir, I think it will be 100 times. 100 times in 100 times in 5 minutes. 5 minutes. वो तो बहुत ज्यादा है. Yeah. Anyone else? ऋषिका. Yes, sir. Sir, I think, sir, 10 to 15, sir, I'm not sure, but I think 10 to 15 times per second. Yes, somewhere right. 10 to 15, 20, 30, maximum 80 beats per second is recorded. So सोचो कितना तेज वो अपने फेदर को, विंग्स को ये करता है. जब वो होवर करती है फ्लावर के ऊपर, कितना फास्ट होता है. एक सेकंड में 15 टाइम हो जाता है. जैसे आप एक सेकंड में क्या होता है, एक सेकंड कैसे होता है, एक सेकंड हो गया, एक सेकंड. तो इस एक सेकंड में 15 टाइम अप एंड डाउन कर दिया होगा उसने. सोचो अभी 15 टाइम. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15. मैं काउंट भी नहीं कर पा रहा हूँ उतनी फटाफट. एंड द मैक्सिमम रिकॉर्डेड इज 80 बीट्स. माय गॉड, in 1 second 80 beats. And now you go to YouTube and find videos, 4K videos or
slow motion videos of hummingbirds. Okay, so there you will see that how the whole thing is happening when they shoot a hummingbird using 4K cameras. So all these cameras are capturing that moment, and you can see slowly you can see that अरे वाह ये तो बहुत मजे से हो रहा है. Okay, but when you see through these eyes, you won't able to catch it because 1 hour में 15 time हो रहा है, sorry 1 second में, और maximum 1 second में 80 times हो रहा है. You can't catch it. It's not that easy. So that's why I said difficult to see the fine, है ना? Difficult, always difficult. To see the fine, one has to surpass the senses. Of course, अगर हमें fine देखना है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा. Either we need to have some device, either on all these device. I'm just talking about fine in terms of what we see. But जो कि एकदम hidden है, जो कि subtle है, उसके लिए तो फिर device भी काम नहीं करेगा. उसके हम अपने अंदर की पावर को किसी माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. वी कांट यूज दैट माइक्रोस्कोप का तो एक लिमिटेड स्पेस है, वो तो केवल फिजिकल रियलिटी को ही दिखा सकता है. बट समथिंग विच इज सो डीप, सो सटल, दैट कैन नॉट बी सीन यूजिंग एनी एक्सटर्नल डिवाइस और मैकेनिकल डिवाइस और साइंटिफिक डिवाइस. ओके, फॉर दैट वी ऑलरेडी हैव अ डिवाइस. उसके बारे में हम बात करेंगे अभी, बट उससे पहले आपको एक और मैं वीडियो दिखाऊंगा. Now, so when we talking about mind power, so mind is finer than the body and senses. ठीक है, हमने सीख लिया. जो बॉडी बिल्डर है उसका जो बॉडी है वो तो ग्रॉस बॉडी है, उसमें तो एनर्जी आएगी वेन्स में. वो कहाँ से आएगी? करते 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 हम पहुंचे माइंड में, और हमने देखा कि माइंड जो है वो फाइनर है बॉडी और सेंस. और हमने बोला कि फाइनर को ढूंढना मुश्किल होता है, और फाइनर पे ही वो सारी पावर्स हैं. जो फाइन है सारा पावर वही है. ठीक है, तो जो फाइन है सारा पावर वही है, तो इसका मतलब सारा पावर माइंड में ही है. सो दैट मीन्स माइंड होल्ड्स द पावर. ओके, माइंड होल्ड्स द पावर एंड दैट इज कॉल्ड माइंड पावर, जो हम लोग देखे हैं. अब हमने देखा ना लास्ट में ओलंपियंस की हमने लाइव देखी कि कैसे वो लोग अपने आप को ट्रेन किए और फाइनली उन्होंने परफॉर्म किया उस प्लेटफॉर्म पे यूजिंग देयर mind power only. And there are more stories. Maybe in morning session we will recite those stories and tell you those stories where people have used their mind powers and achieved wonders, they created wonders. So this is the mind power we are talking about. Okay, and this mind power, having this mind power is difficult because mind is like a monkey. We all have learned that mind is like a monkey running from one branch to another, eating bananas, thinking of something, then suddenly going to any different place, jumping from this emotion to that emotion. Okay, so if mind power is there and mind is like a monkey, how will I able to get those powers? बिकॉज माइंड का तो नेचर मंकी की तरह है, इसको कंट्रोल करना तो बहुत ही मुश्किल है ना. तो कैसे मैं इसको कंट्रोल करूंगा? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो द नेचर ऑफ माई माइंड, दैट माई माइंड इज लाइक अ मंकी. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. इसके बाद एक एक्टिविटी भी करेंगे. ठीक है, आज इंटरनेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है. आई एम रियली सॉरी. ओके, नाउ द क्वेश्चन कम्स, इफ माइंड इज लाइक अ मंकी देन हाउ विल आई गेट दोज पावर्स? द आंसर इज आई विल गेट दोज पावर्स इंटरनेट इशू है. आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद दिस. द नेक्स्ट स्लाइड इज नॉट कमिंग. Okay, so I'll get those powers with these two things, struggle and practice. Struggle करते रहना है. Struggle like hustle करते रहना है. Monkey के साथ कुछ ना कुछ activity करते रहना है. Monkey के साथ आपको कुश्ती करते रहना है और कुछ practice भी करना है. तो struggle and practice. अब क्या struggle करना है और क्या practice करना है? This video is about mind, how our mind acts and reacts to the situations.
So this video will help you, and you can totally relate to this video because, as I said, mind is like a monkey. So now you experience what kind of activities my mind does. Look at this. वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो है ना. माइंड का स्ट्रगल, monkey mind ka struggle. It's very difficult to control and very difficult to tame this monkey mind. Okay, so the struggle is towards purification and practice meditation. So you are going to learn meditation. Shantanu sir will organize meditation sessions for you in the morning. वो तो आपको हेल्प करेगा अपने माइंड को कैसे काम, कंपोज्ड और उसको आपको फोकस करना है. And the struggle towards purification is a very intense process which nobody can do except you. Okay, तो mind को purify भी करना पड़ेगा. Mind is full of clutter. जैसे अभी देखा हमने इस वीडियो में, mind कितनी सारी चीजें जो सोच रहा है उसको वो imagine भी कर रहा है और घूम रहा है, उसी में घूम रहा है, बहुत सारे अपने desires को लेके इधर से उधर, उधर से इधर भाग रहा है और finally उस mind की वजह से बहुत chaos create होगी. तो सिमिलरली ऐसे माइंड को वापस स्टेज में लाने के लिए हमें इतने ही एफर्ट करने पड़ेंगे जितने एफर्ट ये बाहर जाने में कर रहा है. ठीक है, तो माइंड हमेशा बाहर जाना चाहता है, आउटवर्ड. हमारी सेंसेस जो है माइंड को कहती है नहीं नहीं अभी पढ़ाई रहने दो, थोड़ा देख लेते हैं आईपीएल में क्या चल रहा है, अरे नहीं नहीं ये छोड़ो अभी मूवी देख लेते हैं थोड़ा कुछ, अरे अभी नहीं. तो क्या है, वी हैव टू ब्रिंग इट बैक. नो, बाय शटिंग द डोर्स ऑफ दीज थॉट्स, बाय रिस्ट्रेनिंग द सेंसेस, okay, and by restraining our mind. और मेडिटेशन प्रैक्टिस करना है और स्ट्रगल करते रहना है. ये ग्लास जो आप यहाँ देख रहे हो ना, ये ग्लास जो है ये मेरे पास है, ये देखो. I have got the glass with me. Okay, if you can see this glass, I have got this. तो अब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. ठीक है, I have got this this vase of water, so I'll put some water here. So understand the mind. Okay, so I'm doing it. I have become a scientist right now. देखो मैं साइंटिस्ट बन गया अभी, क्लास में वो रख लिया. Now I have got two things. One is just a second. Yeah, so this, you see the water, crystal clear water, दिख रहा है सबको? Yes, great. Now what I'll do is I'll make this water dirty. ठीक है,
I'll make this water dirty. So just imagine your mind like this. When your mind is calm and composed and totally focused, na, so it is like this clear water. Okay, you can see through it. See, you can see me through this water. देखो कितने सारे दिख रहा हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 like this. But when this water is dirty, okay, for example, this I'll do that. Color has been changed. थोड़ा सा चेंज हुआ कलर, चेंज लग रहा है कलर. Yes. Yes, थोड़ा और चेंज कर लेते हैं कलर. Now its color is completely changed. Okay, थोड़ा और चेंज हो गया. वेरी गुड. ये तो एप्पी बन गया. एप्पी होता है ना ऐसा ही कलर. ये चेंज हो गया. अब मैं इसमें डाल लूंगा थोड़े पत्थर, थोड़ा सैंड. ठीक है, ये भी डाल दिया. डल गया, दिख रहा है. और इसको मैंने शेक कर दिया. शेक 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 वेल शेक वेल शेक वेल. गर्मी बहुत है, अब इसका जूस बना के पी जाते हैं. पी जाए क्या? वेरी गुड. अभी देखो कितना डर्टी हो गया. थोड़ा सा पानी बढ़ा देते हैं. चलो. ओह माय गॉड. Yes. Look at this. Can you see me now? दिख रहा हूं मैं आपको? हाँ? Can you see me now? इसके थ्रू में दिखाई दे रहा हूं? नहीं दिखाई दे रहा. ओके, तो अब क्या करना पड़ेगा? अब मैंने बोला struggle. So mind is like this currently. Lot of thoughts are there. Lot of emotions are going on. Okay, mind is full of frustration, jealousy, है ना. Mind is sometimes full of guilt. This I have done this, I should have not done this in that way. Such kind of issues are there. Some past anxiety, sorry, some past worries are there. Some future anxieties are there. कि मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, मेरा एग्जाम आने वाला है. So that is what future anxiety. So mind is full of anxiety. Mind is full of past worries. So in such mind where everything is going on, खिचड़ी खिचड़ी पक रहा है, तो माइंड कैसे कॉन्सेंट्रेट होगा? वो तो ऐसा हो गया. देखो, अब इसको कॉन्सेंट्रेट करने का दो तरीके हैं. एक तरीका तो क्या है कि what I'll do is I'll wait for few minutes or maybe few hours. I'll just put it like this और एक जगह पे रख दूंगा मैं, और मैं वेट करूंगा जब इसमें जो सैंड है वो एकदम नीचे बैठ जाएगी, पूरी एकदम नीचे बैठ जाएगी. तो क्या होगा? तो क्रिस्टल क्लियर वाटर है वो मुझे दिखाई देगा. ठीक है, थोड़ा थोड़ा होने लग गया क्लियर. देखो ये हल्का हल्का क्लियर हो रहा है, सैंड नीचे बैठ रहा है. ओके, ठीक है. दिस इज वन वे. देयर इज अनदर वे. अनदर वे इज आई कैन गेट द प्योर वाटर, ओके, एंड स्टार्ट फिलिंग दिस विद द प्योर वाटर. इसको जैसे मैं भरता रहूंगा भरता रहूंगा भरता रहूंगा भरता रहूंगा, तो होगा क्या? एक टाइम आएगा ये भरता जाएगा 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 और गिरता भी जाएगा. ठीक है, डोंट वरी. ये देखो मैं कितना चालाक हूँ, देखा तुमने? ठीक है, तो क्या होगा? ये गिरता जाएगा ऐसे. मतलब कहने का मतलब है जब इस पे हम ये पानी डालते रहेंगे क्या होगा? डाइल्यूट होता रहेगा, डाइल्यूट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद देखेंगे कलर और क्लियर होता रहेगा. लेट्स डू इट. देखो तुम्हें दिखाने के चक्कर में मैं भीग ना जाऊं आज. पानी खत्म हो गया मेरा. लुक एट दिस. अभी देखो, देख पा रहे हो मुझे? कैन यू सी मी नाउ? यस यू कैन. थोड़ा बहुत दिखेगा अभी, थोड़ा उसका सैंड है वो हिल गया है पानी डालने से, बट जस्ट सी दिस. और रुक जाओ, मेरा हाथ आ गया. नाउ जस्ट सी दिस. वो देखो दिख रहा हूं मैं, मेरी नाक दिख रही थी छोटी बड़ी, दिख रहा हूं ना? सो दिस इज द वे. Our mind is just like this glass, not like this pan. ये मेरे को पकड़े रहना पड़ेगा अब, वरना अब ये गिर जाएगा.
तो ऐसा करना पड़ेगा, स्ट्रगल एंड मेडिटेशन, सॉरी स्ट्रगल एंड प्रैक्टिस। स्ट्रगल क्या करना है, माइंड को प्यूरिफाई करना है, ये स्ट्रगल था अभी जो हमने किया। कैसे करना होगा स्ट्रगल, जो हमने प्योर वाटर यहां से लिया है ना, गुड हैबिट्स, गुड हैबिट्स से बैड हैबिट्स को हमने काउंटर कर दिया। दिस इज द ओनली वे। इफ यू हैव बैड हैबिट्स दैट माय माइंड इज नॉट अंडर माय कंट्रोल, ट्राई टू डू इट, ठीक है, ट्राई ब्रिंगिंग गुड हैबिट्स, feed your mind with good habits so that so it's like a graph, जैसे ये ग्राफ है, it's a graph of bad habit is going up 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 and now you need to create another graph of good habits up 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 up। जब ये बराबर आएंगे तो फिर इसको और बढ़ाना है, जो ऐसे से बढ़ेगा तो ये अपने आप डाउन हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट, द डर्टी वाटर यू स्टार्ट pouring फ्रेश वाटर डालते रहो, एक टाइम आएगा कि ये फ्रेश हो जाएगा। अभी देखो इसका जो सैंड है ये एकदम नीचे बैठ भी गया है। नाउ वी ऑल कैन सी, ओके, सो माइंड हैज गॉट ऑल द पावर्स, you all have the power, you don't need to generate the powers, all you need to do is you need to purify your mind, you need to make your mind you need to root your mind towards a particular process of meditation, of purity, then your mind will start giving you the results of those powers, okay। तो nothing comes from outside, कुछ बाहर से नहीं आना है। ये जो पानी मैंने डाला है ये तो बस आपको दिखाने के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए था। एवरीथिंग इज देयर ओनली इन योर माइंड। तो आज आपको मैंने ये मंत्र दिया, अब आप इसको अप्लाई करेंगे। अब कल से आपका मेडिटेशन जर्नी शुरू होगा, तो यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट जो भी डेज हमारे पास बचे हैं, तब तो हम कर ही रहे हैं, उसके बाद भी आपको करना है। एंड साइमल्टेनियसली प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड भी करना है। माइंड के अंदर जेलेसी नहीं होना चाहिए, माइंड के अंदर कोई हेटरेड नहीं होना चाहिए किसी के लिए, माइंड के अंदर लव कंपैशन होना चाहिए। सो दिस इज हाउ यू कैन क्लियर योर माइंड, एंड वंस योर माइंड इज क्लियर लाइक दिस क्रिस्टल क्लियर वाटर, इट विल स्टार्ट गिविंग यू द पावर्स। अगर इसमें उथल पुथल रहेगी, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, इतनी उथल पुथल रहेगी तो आपको कहां से माइंड की पावर मिलने वाली है? माइंड की पावर के लिए तो काम होना पड़ेगा ना, और काम होने के लिए जितना कम हो सके उतना माइंड इन सारी प्रॉब्लम से दूर रहेगा, तभी वो माइंड मेडिटेशन भी कर पाएगा। अभी मैं इसको रख देता हूं साइड, अभी अगर ये गिर गया तो हो जाएगी गड़बड़, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे। किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो बताओ, एनी क्वेरी? You just wasted so much water. Don't worry, that water will go to the desired ones. Plant को मिल जाएगा water. I did not waste the water. Water मेरे उसमें है अभी भी, मैंने जमीन में थोड़ी गिराया water. मैं बहुत चालाक हूँ, मुझे तो ऐसा मत समझना। चलो कोई क्वेश्चन है किसी के पास? अभी मैं अगर सबको ऑन करूंगा करेंगे सब, है ना? सब शुरू हो जाएंगे। रिगार्डिंग सेशन कोई क्वेश्चन है वो लोग हैंड रेस करो, जिसको अभी आज हमने जो सीखा उसमें कोई क्वेश्चन है तो फिजिकल हैंड रेस करो, फिजिकल हैंड। मिस्टी ने ऐसे किया है हैंड। मिस्टी, व्हाट इज द क्वेश्चन यू हैव? सर मेरा ये क्वेश्चन है, जब हमें गुस्सा है हम ये कर सकते हैं? जब गुस्सा आता है यस सर। तब क्या करना है? ये पानी वाला गेम खेलना है? हाँ, जब तुम्हें गुस्सा आता है तो पानी ऐसे जार पे लेना है और अपने सर पे डाल देना। गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हमारे जो माइंड है ना वो गुस्से में एकदम से लाल हो जाता है। तो अपने माइंड को हम मेडिटेशन करेंगे और एवरीडे करेंगे तो हमें गुस्सा नहीं आएगा, ठीक है। अगर कोई हमको कुछ बोलता है, सडनली हमको गुस्सा आ जाता है, तो हम तो उसकी बात को प्रोसेस भी नहीं कर पाते हैं और पहले ही उसके ऊपर बर्स्ट करने लग जाते हैं, ठीक है। तो उसका जो बाहर से किसी ने कुछ बोला या किसी ने कुछ कहा, उससे मैं अफेक्ट नहीं होना चाहिए, चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन उसके लिए आपको उस लेवल पे आना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप अभी बैठे हो, कोई बोले कि और आप हंस रहे हो, नहीं, अरे सब ठीक है, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। जैसे ओलंपिक्स में हमने देखा ना कि जब गोल्ड मेडल शॉट मारा तो उसके लिए उसने कितना प्रैक्टिस किया होगा, प्रैक्टिस से एक मुझे बात याद आया, ब्रूस ली का नाम सुना है हम सबने? ब्रूस ली है ना, मार्शल आर्ट के स्पेशलिस्ट थे ब्रूस ली। ब्रूस ली यूज्ड टू से दैट आई डोंट अफ्रेड टू अ मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 1000 kicks, okay,
I afraid of a man who has practiced one kick 1,000 times. This is what he said. कि अगर आपको 1,000 चीजें आती हैं, I don't care, but आपको एक चीज आती है और आपने उसको 1,000 बार प्रैक्टिस किया है, तो हाँ, तब है बात. तो ऐसा है. Anyone else? अब जिसने ऐसे कर दिया वो हाथ नीचे करो. शिवांगी. अच्छा, एक बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को. Listen, if you're not able to get your chance, because in my screen there are few people only, ठीक है? If you don't get any chance, don't curse me, हाँ, कि सर ने मुझे मौका नहीं दिया है ना. तो कि मैं आप सबको मौका दूं. तो what we can do, हम लोग एक गूगल फॉर्म बनाएंगे, उस पर आप अपने सारे क्वेश्चंस लिख देना, ठीक है? एंड विल ट्राई टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस, ठीक है? ऐसा करेंगे. अभी हम लोगों के पास जितना लिमिटेड है टाइम है, हम उतना ही कर सकते हैं. इससे ज्यादा लेंगे तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा, फिर आप बोलोगे सर ने. यस शिवांगी. सर आपने मैसेज किया था कि आप इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे आज हम लोग तो ग्रुप पे, पर तो मैं इंस्ट्रूमेंट में रखा है. मैंने ये बोला था कि मैं इंस्ट्रूमेंट बजाऊंगा आप लोगों के लिए. चलो बजा देता हूँ मैं. कितना अच्छा बज रहा है. अच्छा, अब वाह, वेरी नाइस. शिवांगी इंस्ट्रूमेंट कर. व्हाट डू यू प्ले? ढोलक. सुनाओ एक बार, चलो सुना दो. देखो, ऑन टैलेंट किसको बोलते हैं? ऑन स्पॉट टैलेंट शो है हमारा विवेकशाला. जिसके पास टैलेंट है ऑन स्पॉट सुनाएगा. चलो सुना दो. कहा था कि आज इंस्ट्रूमेंट रखने हैं अपने पास. हाँ, हमने कल के लिए बोला था. कल आप लोग जिनसे मिलेंगे तो वो म्यूजिशियन हैं, वो आएंगे, आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, आप लोगों के सामने परफॉर्म भी करेंगे, और आप में से कुछ लोग उनके सामने अपना मतलब अपने इंस्ट्रूमेंट उनको सुनाएंगे, ठीक है? और आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं. इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी. और आज शाम को वो बैनर हम लोग डालेंगे ग्रुप पे, तो यू जस्ट गो थ्रू दैट बैनर एंड यू कैन फाइंड अबाउट दैट आर्टिस्ट कि कौन है वो, क्या करते हैं, उन्होंने क्या क्या किया है, ठीक है? चलो बजाओ शिवांगी, सुनाओ. इसको मैंने उल्टा रख दिया. तुम्हारा कैमरा का भी है. Sir, I also have Casio. ओके, मल्टी टैलेंटेड हो तुम. गुड. अभी आप, मैंने जो मैसेज भेजा था, मैंने बोला था कि जिसको भी कल के लिए परफॉर्म करना है वो मुझे चूज करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए आप एक वीडियो बना के मुझे भेजना बोला था. तो आप लोग उस नंबर पे वीडियो बना के भेजोगे अपनी एक रिकॉर्डिंग, ठीक है? एनी अदर क्वेश्चन? एनीवन? हिमांगी. अच्छा, पहले शिवांगी अब हिमांगी. चलो. यस. Sir, I am not able to understand sensory device. सेंसरी डिवाइस. Yes, sir. Sensory device. सेंसरी डिवाइस. अच्छा, डिवाइस क्या होता है? डिवाइस लाइक फोन इज अ डिवाइस, है ना? एनी इंस्ट्रूमेंट, Computer. computer is a device, any instrument is a device. The sensory device is a device that helps you to use your senses basically, ठीक है? ऐसे समझो. तो sensory device हमारे कितनी senses हैं? Okay. How many senses we have got? 5 senses, है ना? तो उसका combination is called sensory device, ठीक है? When our sensory device is, when we use our sensory device and we receive information, we receive signals, okay? We feel, we see, we eat, okay? We taste. तो माइंड को क्या होता है कि इनपुट्स मिलता है ना, हमारी सेंसेस की वजह से तो मिलता है ना इनपुट्स. अगर हम कोई चीज देखेंगे Yes, sir. तो माइंड पे, ब्रेन पे जाएगा, माइंड प्रोसेस करेगा, मीनिंग क्रिएट करेगा ना. तो अगर सेंसरी डिवाइस हमारा थोड़ा
उटपटा सा हो जाएगा तो क्या होगा, माइंड को भी सब उटपटा सा दिखाई देगा। अगर सेंसरी डिवाइस के आगे कोई लेयर आ जाएगी, ठीक है, कोई लेयर आ जाएगी तो हमको दिखेगा नहीं, ठीक है। जैसे माना सन बाहर है और अभी एकदम से क्लाउड आ गए तो आप बोलोगे कि रात हो गई है, आप बोलोगे भैया रात हो गई है, बोलोगे क्यों भाई रात क्यों हुआ, बोलोगे सन ही नहीं है। तो लेकिन कोई बोलेगा कि अरे सन तो है बट क्लाउड ने ढक दिया है, इसलिए इसलिए डार्कनेस। तो सेंसरी डिवाइस गड़बड़ परफॉर्म कर सकता है उस टाइम पे, ठीक है। तो सेंसरी डिवाइस मतलब क्या है कि उसके पास इंटेलिजेंस नहीं है, उसके पास कोई ऐसी ताकत नहीं कि वो डिफरेंशिएट कर पाए कि सच क्या है और गलत क्या है। सेंसरी डिवाइस ऐसा है कि उसको जो दिख रहा है उसको रिसीव करके वो भेज देता है, अपना काम खत्म करके वो बैठ जाता है और फिर माइंड को कहता है कि तुम मीनिंग बना लो इसका कुछ भी, ठीक है। माइंड कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से एक मीनिंग बनाऊंगा और उससे मैं इस आदमी का दिमाग खराब कर दूंगा, ठीक है। तो वो फिर आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, वो फिर टेंशन में चला जाता है, वो फिर डिप्रेशन में चला जाता है। तो यही होता है, ये जो सेंसरी डिवाइस है ये उल्टी पुल्टी हरकतें करता है, तो उससे क्या होता है, हमारा माइंड कंट्रोल में नहीं हो पाता। तो इसलिए सेंसरी डिवाइस को भी कंट्रोल पे रखना है और माइंड को भी कंट्रोल पे रखना है और ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। Okay, sir. Thank Okay. you, sir. Any other? Larika? Sir, sir, last year I have a book of Swami Vivekananda and in it is written a quotation and I did not understand that. Okay. बताओ क्या लिखा है? Ye are not matter, ye are not bodies. Matter is your servant, not you the servant of matter. बाप रे, मैटर क्या होता है? मैटर किसी को पता है? मैटर का मतलब क्या होता है? This matter. क्या? बताओ बताओ, आराध्या ने बताना है, चलो। So matter is that something we sense. Something with? That what we matter, like what we matter, something good, we matter something bad, like that. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है वो वाला मैटर नहीं, वो वाला मैटर नहीं है। दैट इज वाई लरिका इज हैविंग डाउट। मैटर को समझने के लिए हमको थोड़ा साइंस को भी समझना पड़ेगा, ठीक है। मैटर का मतलब होता है फिजिकल रियलिटी, फिजिकल जो भी आप देख रहे हो आसपास अपने, दैट इज कॉल्ड मैटर। मतलब ये जो वर्ड है हमारे चारों ओर, फिजिकल वर्ड जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। इसको आप फिजिक्स में लैंग्वेज में आप समझ पाओगे अच्छे से। द फिजिकल रियलिटी अराउंड अस, जो भी दिख रहा है, फिजिकल स्पेस, फिजिकल यूनिवर्स, एवरीथिंग इज मैटर। ह्यूमन बीइंग्स, ये फिजिकल हम लोग जो बॉडी है, इट इज ऑल्सो मैटर। अब क्या बोला उन्होंने कि वी आर नॉट मैटर, तो हम लोग मैटर नहीं है। ये जो सब दिख रहा है ये सब मैटर है, मेरी बॉडी भी मैटर है, मेरी बॉडी भी ग्रॉस, अभी हमने सीखा था ना ग्रॉस बॉडी बोला था ना, ग्रॉस वर्ड सुना था, जिसको हम स्थूल बोलते हैं, विच वी कैन टच, विच इज फिजिकल। मैटर इज समथिंग विच इज पेरिशेबल। मैटर वो चीज होता है जो नष्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं मैटर। जो भी चीज है इस दुनिया में नष्ट हो जाएगा, ये है मैटर, ये नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। कोई भी चीज जो खत्म हो जाएगी उसको ग्रॉस बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं मैटर। और साइंस की लैंग्वेज में अगर समझोगे तो साइंस की लैंग्वेज में मैटर को कैसे समझ सकते हैं मैं बताता हूँ। डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं ना, डिफरेंट एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स, जब वो आपस में एक साथ रहते हैं तो वो मैटर बन जाता है, ठीक है। और जब वो उसको मैटर कौन बनाता है? एनर्जी उसको मैटर बना देती है, और वही एनर्जी उसको नॉर्मल एनर्जी में प्रोड्यूस वो कर देती है। तो जो मॉलिक्यूल्स, ऐसे समझो सिंपल लैंग्वेज में, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब आपस में आएंगे ना तो वो मैटर बन जाएगा, ठीक है। और उनको जो बाइंड करेगी वो एक एनर्जी होगी। तो ह्यूमन बीइंग्स, हमारी बॉडी को भी एक एनर्जी बाइंड करती है। हमारी एक बॉडी है ना, ये पूरा शरीर है, ठीक है। हम सबके अंदर एक एनर्जी है, ठीक है। ललिका सुनो, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये एनर्जी क्या है? हमारी बॉडी को बाइंड करती है, ठीक है। जब ये एनर्जी हमारे अंदर से चली जाती है तो क्या होता है? बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, टुकड़ों में टूट जाती है ना, डिकम्पोज हो जाती है ना। अगर कोई चीज डेड हो जाती है, ऐसे समझो, कोई चीज डेड हो जाती है तो वो क्या होता है? वो कुछ टाइम के बाद खराब हो जाती है, होता है ना।
कुछ टाइम के बाद वो सड़ जाएगा, कुछ टाइम के बाद वो एकदम गायब हो जाएगा। मतलब जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल कोई इंसेक्ट कहीं पे मरा हुआ है, कहीं फील्ड में कोई इंसेक्ट गिरा हुआ है, थोड़े 1-2 दिन के बाद वो गायब हो जाता है वहां से, कुछ वो डिकम्पोज हो जाता है, पूरा उसका एलिमेंट्स जो फिजिकल एलिमेंट्स है वो सब मिल जाते हैं जमीन में जहां से वो आए होते हैं। तो इसका मतलब एक एनर्जी थी जिसने उसको बांध के रखा था। सो एनर्जी हेल्प्स दीज मॉलिक्यूल्स टू बाइंड टुगेदर। तो वो जब वो आपस में बंध जाते हैं तो मैटर बन जाता है, और जैसे एनर्जी निकल जाती है तो वो गायब हो जाता है, मैटर का कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसलिए मैटर को बोलते हैं मैटर स्थूल है, वो खत्म हो सकता है। एनर्जी जो है, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। सुना है ना, साइंस में भी सुना है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। यस, समझ में आया लड़की का? गुड, ओके। तो उन्होंने बोला कि हम मैटर नहीं है, हम क्या है? हम, बोलो क्या बोला उन्होंने, पूरा बोलो, कोट क्या बोला? हम बॉडी भी नहीं है, हम मैटर भी नहीं है, हम मैटर के सर्वेंट are हैं। not matter, bodies. Matter is your servant, not you the servant of matter. Yes. तो आपको अपनी बॉडी और जो फिजिकल आपकी रियलिटी है वो आपका सर्वेंट नहीं होना चाहिए। आपका माइंड भी, आपको माइंड भी वो बनना है, क्या बोलना है? ओनर बनना है। माइंड को भी अपने वश में रखना है। माइंड आपको अपने वश में रख के आपको इधर उधर नहीं घुमाना चाहिए। आपकी बॉडी को भी यहाँ ले जा रहा है, आपको भी यहाँ ले जा रहा है, ये है उनका कहना। ठीक है, Sir. ओके। And sir, what is the meaning of that ye, 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 ये ye? YE Yes, sir. it is a classical way of English। तो आप जैसे यू बोलते हैं ना, यू, तो वैसे आप Yes, sir. जैसे पहले जब आप जब बहुत पुरानी कोई इंग्लिश लिटरेचर अगर कभी पढ़ेंगे ना, पुराने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे, तो उनमें बहुत क्लासिकल इंग्लिश यूज हुआ करती थी। जैसे THOU, दाऊ करके पढ़ा जाता है, दाऊ। अगर कभी आप बाइबल पढ़ेंगे इंग्लिश में तो उस पे बहुत सारे जो वो हैं वो ऐसे लिखे गए THOU। ओके, दाऊ का मतलब होता है यू। तो ये क्लासिकल इंग्लिश है, बहुत पहले ऐसे यूज होता था, तो वैसे ही वो यूज हुआ। Okay, sir. ओके, वन लास्ट हैंड, प्रतीक। Pratik is like, yes. Sir, I have a question that you have an example of water in which you put some dirt and stones. I am asking that at the last hand the water, जब water में से हम आर पार देख सकते थे तो क्या हम वो water पी सकते थे बाद में? हाँ, पी तो सकते हैं, थोड़ा उसको प्यूरिफाई करके। See, that was for the representation। पीने के लिए पी तो सकते हो, बिल्कुल। देखो जब जो नेचुरल रेवलेट्स होते हैं ना, जो रिवर्स होती हैं, जब वो फ्लो करती हैं, उसमें भी तो सैंड होता है, और वो एकदम फ्लोइंग वाटर, तो वो वाटर तो आप पी। बट ये आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए था कि जब उस पे सैंड पूरा एकदम वर्लपूल क्रिएट हो गया सैंड का, तो उसके आर पार हम कुछ देख नहीं पा रहे हैं ना। तो सिमिलरली when whirlpool of thoughts occurs in our mind, so we can also we also don't see the potential of our mind। We don't know how to use that mind properly। जैसे हमें कभी गुस्सा आता है ना, तो कभी कभी गुस्सा आता है तो हमारा माइंड काम नहीं करता, उस समय हमारे हाथ पैर भी हिलने लग जाते हैं, है ना, तो माइंड में थॉट्स का वर्लपूल आने लग जाता है। तो आपको सेटल होना पड़ता है, उस वर्लपूल को थोड़ा शांत होने देना पड़ता है। तो जब वो शांत होगा तो जो सैंड है वो नीचे बैठ जाएगा, तो ऊपर क्लियर वाटर दिखेगा ना। तो वैसे ही माइंड भी है, एकदम ऐसे ही है। आपको कुछ भी ज्यादा और चीज समझने की जरूरत नहीं है। ऐसे एग्जांपल से आप बहुत आसानी से समझ सकते हो कि अवर माइंड इज जस्ट लाइक दैट ग्लास ऑफ वाटर। अगर उसको हिला दिया तो सब उथल पुथल हो गया, और थोड़ा वेट किया। वेट करना मतलब मेडिटेशन करना, ठीक है। जैसे हम पानी का वेट कर रहे हैं, तो हम मेडिटेशन करेंगे तो अपने आप शांत होगा वो, ठीक है। और स्ट्रगल क्या था? स्ट्रगल करना मतलब क्या था? उसको प्यूरिफाई करना। अगर मैं कोई स्ट्रेनर यूज करके इस पानी को छान देता अभी, उसको स्ट्रगल बोलेंगे, ठीक है। स्ट्रगल मतलब प्यूरिफाई करना, अपने माइंड में जो भी हमारे अंदर जो भी चीजें हैं जो माइंड को इन्वॉल्व रखती हैं थॉट्स में, उनको कम करना, सो दैट हम जितना हो सके उतना अपने माइंड को काम और कंपोज और कॉन्सेंट्रेटेड रखें, और जहां पर जरूरत हो वहां पर उसको फोकस करें।
rather than पढ़ाई के टाइम पे माइंड बाहर घूम रहा है। नेपोलियन को देखा उसने, देखा उसमें पिक्चर में नेपोलियन को देखा उसने, वो भी घोड़े में ऐसे ऐसे माइंड उसका घूमने लग गया, ठीक है। उसने फिर गैलेक्सी देखा, वो पता नहीं कहाँ माइंड गैलेक्सीज में पहुंच गया। तो दैट वाज बिकॉज माइंड हैज दिस नेचर। चलो रुचि, एक लास्ट क्वेश्चन रुचि का पास क्वेरी है, इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। Control our mind. हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड। तो ये अब आप लोगों को हम नेक्स्ट सेशन में बताएंगे, हाउ टू कंट्रोल दिस माइंड, ठीक है। और जो भी आप हाउ टू सीखते हो ना, कभी भी whenever you learn any how to, okay, how to do this, how to do that, so that how to demands practice, ठीक है। So don't ever think that when you learn how to, when you watch any video, that will help you. How to always helps when you bring it in your everyday life. When you keep doing it, it will automatically start giving you results. आपको पता ही नहीं चलेगा। कैसे, मैं बताता हूँ। कभी आप, अभी आप इस सेशन के बाद यू गो एंड हैव वर्ड विद योर फादर, ठीक है। फादर से भी कर सकते हो, मदर से भी कर सकते हो, ठीक है। जस्ट आस्क देम कि व्हेन वी इन्वेस्ट, मतलब जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा ग्रो कैसे होता है, ऐसे पूछना। केवल सिंपल क्वेश्चन पूछना। अगर मैं 100 रुपीज एवरी मंथ उसको मैं किसी एक कहीं पे सेव कर दूं तो वो ग्रो कैसे होगा। तो उसमें एक इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। एवरी ईयर हम बैंक में पैसा रखते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर हमें 5% इंटरेस्ट मिला 100 रुपीज में, ठीक है, तो 5 रुपीज का हमको इंटरेस्ट मिला, तो एक साल में कितना हो गया, 105 रुपए हो गया, है ना। फिर नेक्स्ट ईयर हमने फिर से 100 रुपीज डाले, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 205 रुपीज हो गए। अब 205 पे हमें 5% कितना मिलेगा, 10 रुपीज मिलेगा ना। अब जितना उसका वैल्यू आएगा 11 रुपीज करके, तो अगली बार वो 11 रुपीज ऐड हो जाएगा, 205 प्लस 11 हो जाएगा 2016। फिर से 100 रुपीज आया उस पर, वो 3016 हो गया। अब 3016 में फिर 5%, तो ऐसे 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 करके वो ग्रो करता है, ठीक है। स्लोली 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 ग्रो करता है। तो वैसे ही व्हेन वी इन्वेस्ट इन अवर माइंड, माइंड भी स्लोली 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 आपको रिजल्ट देता है। ऐसा नहीं कि आज आपने मेडिटेशन किया और कल से आप एकदम बन गए बिल्कुल 30 मार खान। Slowly slowly it will start giving you results, but it will definitely give you 100%, 110% truth, ठीक है। बाकी जब आप सेशन करोगे तो आप खुद उसको फील करोगे, you start doing it and you will get the results. चलो, we'll meet tomorrow morning and tomorrow evening हमारा एक अच्छा सा सेशन होने वाला है। तो आप लोग प्रिपेयर होके आइएगा, बढ़िया करके लाइट हेडेड होके बैठोगे और थोड़ा म्यूजिक सुनोगे, ठीक है। और अगर आप लोगों के पास और भी क्वेरीज हैं, कुछ भी रिलेटेड टू व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर हेड करेंटली, और अगर आप चाहते हो कि आपका नाम भी ना बताएं बट आपका आंसर मिल जाए, कुछ होंगे ना ऐसे जो नाम भी नहीं बताएंगे और आंसर भी चाहिए होगा, तो उनके लिए भी हम लोग एक एनोनिमस फॉर्म वो करेंगे, तो आप उस फॉर्म को फिल कर देना, ठीक है, और अपना क्वेश्चन वहां डाल देना, ठीक है। तो सारी क्वेरीज हम लोग वहां से उठाएंगे और इसमें हम लोग लिमिटेड आंसर दे सकते हैं, क्योंकि फिर बहुत टाइम हो जाता है, फिर बहुत ज्यादा हम लोग वो नहीं कर पाएंगे। चलो मिलते हैं। अभी सबने ऐसा याद किया तो मैं भी ऐसा ही याद कर रहा हूं। ओके, सी यू टुमारो। स्माइल के साथ बाय बोलो। हाँ, स्माइल के साथ, यस। सी यू टुमारो मॉर्निंग। और कल आपको शांतनु सर बताएंगे मेडिटेशन के बारे में, ठीक है। एंड वी विल मीट इन द इवनिंग एज वेल। बाय।